सुप्रभात सभी लोगों को। मेरा नाम है स्नेहाशीष पारी। तो फिर मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा मीन्स पॉटरी का कैसे होता है यूजुअली, व्हाट आर द डिफरेंट पॉटरीज, ऑर्नामेंट्स, कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड का फॉर्मुलेशन कैसे हुआ था, उनका योगदान कैसे रहा डिफरेंट सिटीजन्स का, और कौन कौन सा रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते थे, और उनका आर्किटेक्चर डेवलपमेंट कैसा हो रहा था, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन मीन्स एक बार फिर से देखना चाहता हूँ, मीन्स फिर से आपको दिलवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और टाइप्स ऑफ पॉटरी और किस पीरियड का पॉटरी है वो सिग्निफाई करने के लिए बोला है। तो फिर आप इधर देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड पॉटरी। अगर देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आएगा, आपको IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब नाम भी आएगा, तो फिर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेड प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इंडस वैली अगर हम इंडिया मैप देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन इस एरिया में स्थित है जो कि इंडस रिवर के पास, ओके, इंडस रिवर के पास ये सिचुएटेड है। अगर इंडस रिवर के पास ये सिचुएटेड है तो फिर इस एरिया में, सेमी एरिड एरिया में, बहुत ज़्यादा सॉइल किसका पाते हैं हम, वो ब्लैक एंड रेड सॉइल बहुत मात्रा में पाते हैं। तो इसी दौरान इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी हो रहा था, या फिर वट एवर इंस्ट्रूमेंट वी आर बीन यूजिंग फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ pottery, then Indus Valley directly signified to the black and red pottery. Okay, so that's the reason what. Okay, so let me take an example to make you more understanding about that, about the situation. So if we discuss about the black and red pottery, okay, it basically signified the architectural development. Usually pottery doesn't only mean about the use of different kinds of availability, use of different kinds of daily use, you get different kinds of pottery, right? So in the similar fashion, if we use red and black pottery, it also signified that most of the houses, most of the architectural development, most of the sculptural development are been done on this soil only. दैट्स द थिंग। ओके, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड एंड ब्लैक सॉइल का यूज होता था। इसी दौरान हम जान सकते हैं कि रेड एंड ब्लैक सॉइल आर द मोस्ट प्रेफरेंस सॉइल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर द above given question. So let me go for the another later Vedic period. If we discuss about later Vedic period, painted grey ware. Okay, so painted grey ware, usually grey, how it comes, usually its color is zinc, right? So grey ware is been used in the later Vedic period, or the later Vedic period. After the Vedic period, it is been used, or it is been propagation of Vedic period, like coating silver coating, right? That's the thing, right? So painted gray pottery or painted gray ware been used in the later Vedic period, but in the early Vedic period, nor the orchard color been used. Okay, for pottery making, in the early Vedic period, the orchards were not been used. That's the thing which you should have to know that. Okay, so which of the following given is correctly matched? So only 1 and 2, which are later Vedic period and Indus Valley civilization, are the most preferable answers for the above given question. So rather 3 is not the right answer for the above given question. It is the wrong matched option according to the pottery making. Okay, that's the thing. Okay, you should have to know that. So in the explanation part itself, you might be having understanding that option 1, option 2 and option 1 and option 2 are the right option or correctly matched option, nor the option 3. Okay, so let me have the understanding or explanation why it is right, why it is wrong. So if you watching my video, please watch till end, such that you will get an information, additional information, I can say that.
So here you have the additional information part which I have already underlined for you all. So I hope that you are getting the points right. So if I discuss about each and every underlined point, here it is given that how advanced skill has been preferred. कैसे advanced skill वो prefer करते थे, जैसे कि हम जानते हैं अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन दे दिया, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन दे दिया, ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है मोहनजोदारो, दूसरा है हड़प्पा, ठीक है। बेस्ड अपॉन दीज टू प्राइम सिटीज मीन्स मेजर सिटीज कहते हैं हम, क्यों कहते हैं, क्योंकि यही सिटीज में या फिर यही टाउन्स में सिविलाइजेशन का start हुआ था. You can say that the civilization has begun on this era only, or on this two major cities only. Okay, if I discuss, the first pre-Harappan pottery was discovered or been invented or been excavated in the Sothi in Rajasthan, located in the bank of ancient Darsavati. Okay, ancient Darsavati वो सिटी है जो कि पोट्री का मीन्स इन्वेंशन किया था या फिर एक्सकावेशन किया था. उसके बाद कालीभंग आल्सो राजस्थान है. उसके बाद लेटेस्ट एक्सकावेशन जो कि अभी अभी हुआ था, जो कि एक्सकावेशन जो वो है कालीभंग में हुआ था इन राजस्थान. ओके, पहला है राजस्थान सोथी में, दूसरा है कालीभंग, वो भी राजस्थान में ही हुआ था. तो फिर अगर देखें, यूजुअली द पोट्री बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिकल ऑल ओवर नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया. ओके, आपको मैं पहले ही बोल चुका था, अगर इंडिया में अब दिखा के भी बोल चुका था कि नॉर्थ में, वेस्ट में और सेंट्रल इंडिया में ही ये पोट्री का पीरियड चल रहा था. यूजुअली दिस पोट्री इज बीन मेड in this span of period, right? So that's the thing. Okay, I hope that the pottery has been generally grouped. So usually pottery को भी grouping कर देते थे. Okay, the pottery grouping is based on the number of alphabets in the English alphabets, that is A, B, C, D, E and F. Okay, A, B, C, D, E, F. Usually these are the 6 measured group generally made on pottery, right? So then after, a very important topic, that is Harappa and Mohenjo-daro now in Pakistan. Okay, that's the reason what the Indus Valley, the Indus River flows right from the Himalayas to the Pakistan's. Okay, so based upon that, Mohenjo-daro has been situated in the Pakistan region. Okay, so then after were the first site where excavated resulted in the discovery of highly developed culture. आई एम रिपीटिंग, हाईली डेवलप्ड कल्चर. तो उस समय ही हाईली एडवांस स्किल का प्रेफरेंस मिलता था, एडवांस स्किल का कल्चर मिलता था, और उनसे प्रभावित होकर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग पर्पज भी वो कर देते थे. मीन्स उनका रिसोर्स अवेलेबिलिटी को लेकर वो सारा अपना योगदान बढ़ा देते थे, क्योंकि इसीलिए वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे, और हम हिस्ट्री में उनको ज़्यादा प्रेफरेंस भी देते थे. ठीक है, तो फिर हड़प्पा या फिर मोहनजोदारो में एडवांस डेवलप्ड कल्चर का कुछ अंश मिलता था. ठीक है, क्योंकि कैसे कैसे वो करते थे वो सारा हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे. ठीक है, एक्सटेंसिव एक्सकावेशन हैज़ बीन आर देयर स्टिल बीइंग कैरिड आउट इन इंडिया बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अभी भी वो चल रहा है. कहाँ से, कौन, वो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ASI के माध्यम से अभी भी वो चल रहा है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी निकाल रहे हैं, उनका जो भी यूज मटेरियल्स वो सारा निकाल रहे हैं, और उनका पढ़ाई भी हम करेंगे, जो कि होते हैं बिग रिसर्चर्स. ठीक है, द पोट्री यील्ड ऑफ एक्सकावेशन हैज बीन शोन इन द हड़प्पन कल्चर एंड इज वाइड स्प्रेड एज द प्री हड़प्पा. ठीक है, हड़प्पा एंड प्री हड़प्पा में वो प्रोपागेशन करने लगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर प्रेफरेंस देते थे, तो इसीलिए उनका क्या हो रहा था, उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोसीजर या फिर वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट प्रोसीजर भी होता था. उसके बाद पीपल और हाईली एडवांस्ड, मैं पहले ही बोल चुका था, क्योंकि पीपल्स वर हाईली एडवांस्ड विद द कल्चर, विद द ट्रेडिशन एंड द कस्टम्स दे यूजुअली फॉलो. देन आफ्टर टेक्निकल स्किल में भी वो बहुत ज़्यादा एडवांस रहते थे. मीन साइंटिफिक स्किल हम कहते थे, जैसे कि हम जाते हैं स्पीड में, या फिर उसके बाद डिजाइन में, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इंजीनियरिंग में वो बहुत बड़ा एडवांस स्किल प्रेफरेंस देते थे.
उसके बाद शेप साइज डिजाइन ऑफ पोट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट शेप्स करते थे, और डिफरेंट पीरियड्स में अपना डिफरेंट क्या बोलते हैं उससे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट करते थे। हाउसेस का बिल्डिंग 2 फ्लोर्स 3 फ्लोर्स भी करते थे उस समय 2 फ्लोर्स करते थे। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उस समय ही वो उनका 2 फ्लोर्स 3 फ्लोर्स रहता था। उसके बाद द पॉटरी इटसेल्फ सीम्स टू फुलफिल बोथ द यूटिलिटेरियन एंड डेकोरेटिव फंक्शन। ओके, द पॉटरीज को डेकोरेशन भी करते थे, उनका योगदान देते थे, उनका आर्किटेक्चरल स्किल उसमें डेवलप मीन्स क्या करते हैं, शो करते थे। उसके बाद मीन्स बेसिकली देर आर हड़प्पन इंक्लूड्स, हड़प्पा में 5 प्रकार के पोट्री में इंक्लूडेड है। वो है रेड वेयर, ब्लैक वेयर, उसके बाद रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, बुफी वेयर, buff wear and grey wear, usually 4. Okay, so it's not 5, it's 4, that is red wear, black red wear, उसके बाद grey wear and buff wear, the preference colors or the preference pottery in the Harappan period. Okay, that's the thing you should have to know. Then you should have to know what is OCW, that is orchard color wear, which is not being used in the early Vedic period. Okay, okay, contemporary of Harappan culture there exists another culture, another culture में वो यूज होता था जो कि orchard colored wear, जो कि pottery making में या फिर pottery has been washed out look. okay, क्योंकि वो washed out look देने के लिए OCW का कलर यूज करते थे। ठीक है, इधर देख सकते हैं, you might be seeing here that the potteries which are been usually preferable in the Indus Valley civilization started declining, उनका पतन होने स्टार्ट किया। जैसे कि हम जानते हैं रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, उसके बाद ग्रे वेयर, ब्लफ ग्रे वेयर, उसको क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा एडवांस स्किल उनका जब बढ़ता है, लोकतंत्र बढ़ता है, इंटेलिजेंसी पावर एंड एडवांस स्किल भी बढ़ता है, राइट। सो इसी दौरान उनका पतन होने लगा। किसका? जो पोट्री पहला यूज होने लगा, मीन्स लेट हड़प्पन पीरियड। सो वही इसमें दिया गया है, फेज वाइज उनका डेवलपमेंट क्या हुआ, बढ़ने लगा। जब डेवलपमेंट बढ़ने लगा उनका डिक्लेन स्टार्ट होने लगा। तो उसके बाद this pottery making it does not show the advanced skill or the new development that has been previously. So previously जो भी development skill इसमें show करते थे उसमें और slow नहीं करने लगा। The classification of this pottery of this period is based on regional and influences and is been labeled according to the site has been found. So according to the site found, according to the pre-development, so these has been rectified and been made as Kathia ware, Prabhas ware, Malwa ware, Jor ware and lustrous red ware. ठीक है, इसमें कन्वर्ट होने लगा क्योंकि जब एडवांस स्किल बढ़ने लगा उनका डेवलपमेंट भी स्टार्ट होने लगा। तो इसी दौरान इसमें यही लिखा गया है। उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर में यही है कि इट इज़ वेरी फाइन ग्रे कलर पोट्री बिलोंग टू द वैदिक पीरियड ऑफ इंडिया। ये किस रीजन से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है वैदिक पीरियड से। ठीक है, किस पीरियड से? ये है वैदिक पीरियड से ये बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद द पॉटरी इज सोन फाइन दैट द वॉल ऑफ द पॉट आर रिफाइंड टू as a being egg cell thin incision. The existence of this highly specified pottery suggests that it might be seen made in ritual purposes and royalty. Usually रिचुअल प्रपोजेस या फिर जैसे कि धार्मिक स्थान में या फिर धार्मिक कल्चर्स में, धार्मिक ट्रेडिशंस में वो इस पॉटरी का उत्पादन या फिर व्यवहार करते या फिर यूज़ करते थे। किसका? पेंटेड ग्रे वेयर में। उसके बाद नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि ब्लैक पॉटरी सरफेस थिन लस्ट्रस इन नेचर, अबाउट 9% ऑफ द पॉटरी जेट ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक एंड ब्लूइश डार्क। क्योंकि उस समय में भी कलर का बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस हो देते थे और इसके दौरान वो एक न्यू इन्वेंशन की या फिर न्यू पोट्री का इन्वेंट किए, वो है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी। ये सभी इंफॉर्मेशन आर्कोलॉजिकल सर्वे से ही मिला। जैसे कि जब वो
और का जब वो मीन्स रिसर्च करते थे उस समय ही इस सारा कलर्स का जो कि यूज़ करते थे, वो सारा कलर्स का यूज़ उन इन्वेंशन से ही या फिर रिसर्च से ही मिला, ठीक है। वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। NBPW जो कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलवेयर, प्रभास वेयर, कतिया वेयर, जोहर वेयर जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, बफ वेयर एंड ग्रे वेयर का एक योगदान है या फिर अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।